Good morning to every student. Today we are going to start third unit, differential calculus. The first chapter is continuity and differentiability. So before starting continuity of the function, first of all we know limit of the function. In first year class we are already discussed limit of the function. You know what we mean by limit of the function. So let f of x be a function and x is equal to a be any real number. The approximate value of f of x when x near to a is called limit of the function, and this approximate value is denoted by limit x tends to a f of x. But you know how to find limit x tends to a f of x. There are three methods to find limit x tends to a f of x. The method one direct substitution. Direct substitution. So in such case method, put x is equal to a in f of x and calculate the value of f of x, which is called the limit of the function. But if we put x is equal to a in a given function, suppose it will be 0 by 0 or infinite by infinite form, so the direct substitution method is a failure. Next we go to second method. We have to calculate this limit, that is method 2. So method 2 is factorization method. Factorization method. To evaluate limit x tends to a fx by gx. First you have to put x is equal to a in f of x and g of x. If it will be 0 by 0 or infinite by infinite form, in such case first you have to factorize f of x and g of x, then cancel the common factor. After cancel the common factor, put x is equal to a, and that value is called limit x tends to a f of x by g of x. For example, limit x tends to minus 2 x square minus x minus 6 by x plus 2. So how to find the limit of the function? Here given that limit x tends to minus 2, means you have to put x is equal to minus 2 in a given function, that is equal to minus 2 whole square 4, a minus of minus 2 plus 2 minus 6 by minus 2 plus 2, so this is equal to 0 by 0. So this is 0 by 0 form. So this limit is 0 by 0 form. So in such case, this is equal to limit x tends to minus 2. You have to factorize f of x and g of x. So x square plus 2x minus 3x, multiplication of 2x and minus 3x equal to minus 6x square, and the addition of 2x minus 3x equal to minus x.
minus 6 by x plus 2. So this is equal to limit x tends to minus 2. Then take common x plus 2 minus 3 take common x plus 2 by x plus 2. So this is equal to limit x tends to minus 2 and x plus 3 into x minus 3 or x minus 3 into x plus 2 by x plus 2. Then cancel the common factor. After cancel the common factor, then put limit. So this is equal to minus 2 minus 3. This is equal to minus 5. So the limit value of the function is equal to minus 5. So in such case, you have to find the limit of a factorization method. Next, in method 3, the rationalization method. So method 3 is rationalization method. So method 3, rationalization method. Rationalization method. So rationalization method means to evaluate limit x tends to a f of x by gx, where fx or gx or both fx gx contains square root function or irrational function. So if we put limit x tends to a fx by gx is 0 by 0 or infinite by infinite form, and fx gx contains square root or irrational function, in such case first you have to rationalize by multiplying the conjugate factor of both numerator and denominator, then cancel the common factor. After cancel the common factor, put this limit. तो आम रेशनलाइजेशन मेथड कौन करछे, जदि लिमिटा पकेले 0 by 0 फॉर्म पळासी आ fx gx रे जदि स्क्वायर रूट फंक्शन थिबो बा इरेशनल फंक्शन थिबो, ए केस रे तुमको कोन करिया पड़ियो, रेशनलाइज करिया पड़ियो बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कंजुगेट फैक्टर. तार कंजुगेट फैक्टर टाको बोथ न्यूमरेटर आ डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई करिकरी तमे ताको रेशनलाइजेशन करियो. रेशनलाइजेशन करला परे कॉमन फैक्टर टा कैंसिल हबो, कैंसिल करला पर तमे लिमिट टा पकेबो. फॉर एग्जांपल evaluate limit x tends to 0 mod of 2x plus 3 square root of 2x plus 3 minus root 3 by x. तो ए केस रे कोन करछि ना स्क्वायर रूट फंक्शन अछि, हमें जदि लिमिट टा डायरेक्ट पकेबा 2 into 2 2 into 0 plus 3, तो root 3 minus root 3 0 by 0 form. So this is equal to 0 by 0 form. तो हमें एटा को कोन करिया पड़ेडी रेशनलाइजेशन करिया पड़े, काहे एटा फैक्टराइजेशन किछ होबनी, तो रेशनलाइजेशन करिया पड़े. जे तो न्यूमरेटर रे स्क्वायर रूट फंक्शन रा अछि, यार कंजुगेट टा ऊपर मल्टीप्लाई करिया पड़े, डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई करिया. So this is equal to limit x tends to 0 root of 2x plus 3 minus root 3 into root of 2x plus 3 plus root 3 whole by x into root of 2x plus 3 plus root 3. So this is equal to limit x tends to 0 at a minus b into a plus b formula, which is of the form a square minus b square 2x plus 3 at a minus 3 la square ta kotla pore whole by ek asla x into root of 2x plus 3 plus 3.
तो +3 को -3 कैंसिल है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x होल बाय x into root over 2x plus 3 plus root 3 तो एटा x कैंसिल है, टोटल लिमिट टा पके जो x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 अछि माने x जारे 0 पकेबो 2 बाय ये असला 2 into 0 plus 3 plus root 3 so this is equal to 2 by root 3 plus root 3 so this is equal to 2 by 2 root 3 2 by 2 root 3 2 to cancel this is equal to 1 by root 3 and this is the answer. So limit x tends to 0 root over 2x plus 3 minus root 3 by x equal to 1 by root 3. So in such case you have to find limit x tends to a fx. The first method is direct substitution method, second method is Laplace method, and third method is second method factorization and third method is Laplace method. Actually limit x tends to a f of x, meaning the approximate value of fx when x nearer to a. X nearer to a means maybe x slightly smaller than a or maybe x slightly greater than a. But the value of fx when x is slightly less than a is called the left hand limit, and the value of fx when x is slightly greater than a is called the right hand limit. If the left hand limit is equal to right hand limit of the function, then we say limit x tends to a f of x is exists. So for existence of a limit, we have to calculate the left hand limit and right hand limit. So what do you mean by left hand limit? The approximate value of fx when x is slightly less than a, is called left hand limit, and it is denoted by limit x tends to a minus fx. Limit x tends to a minus fx. So how to find limit x tends to a minus fx? Here put x is equal to a minus h. So what is h? H is a very small positive number. As x tends to a minus, that implies h tends to 0. So limit x tends to a minus fx is equal to limit h tends to 0. So x tends to a minus hobo, so h tends to 0 into f of x equal to a minus h, and this is equal to left hand limit. Limit x tends to a minus fx is equal to limit h tends to 0 f of a minus h. This is known as left hand limit. Right hand limit. So what do you mean by right hand limit? The approximate value of f of x when x is slightly greater than a is called right hand limit, and this right hand limit is denoted by RHL. Right hand limit is equal to limit x tends to a plus fx. Limit x tends to a plus fx.
तो हाउ टू कैलकुलेट limit x tends to a plus fx? In such case, you have to put x is equal to a plus x. As x tends to a plus, x tends to 0. तो राइट हैंड लिमिट बाहर करिया बोले हमें पुट x इक्वल टू a plus h नेबा h रा कोन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर a टू टिके बड़ हबो a टू टिके बड़ साइड रे आमे fx रो वैल्यू टाको कैलकुलेशन करिया सेटमा x इक्वल टू a plus h नेले as x tends to a plus then h tends to कोन हबो 0 हबो सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of a plus h so limit x tends to a plus fx is equal to limit h tends to 0 f of a plus h तो लेफ्ट हैंड लिमिट रे कोन कहूची ना fx रो वैल्यू टाको हमें कैलकुलेशन करबा जेतलो x रो वैल्यू a टू टिके सानो हेतियो a टू टिके सानो माने हमें से सानो संख्याटा कोन नउचे h नउचे a टू टिके सानो माने हमें नेबा x is equal to a minus h नेबा as x tends to a minus l h tends to कोन को 0 हो so this is equal to limit x tends to a minus fx equal to limit h tends to 0 f of a minus h so in the right hand limit रे x रो वैल्यू ला कोन हो a टू टिके बड़ हो a टू टिके बढ़ले हमें कोन करछ ताको पुट x equal to a plus h नेबा h टा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर a टू टिके बड़ना टिके बड़ संख्या होची h टा जेतलो x टा a plus h हो by x tends to a plus h सेतलो h tends to 0 ला so limit x tends to a plus fx equal to limit h tends to 0 f of a plus h if left hand limit is equal to right hand limit then the limit of the function exists otherwise it is does not exist जेतेबेले लेफ्ट हैंड लिमिट ता राइट हैंड लिमिट संगे समान होबो सेतले फंक्शन ता एक्जिस्ट होबो लिमिट ऑफ द फंक्शन को एक्जिस्ट करबा जदि दीरा को इक्वल होबोनी दे आर डज नॉट एक्जिस्ट किंतु सब फंक्शन रे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बाहर करिया के आवश्यकता नाही जो फंक्शन दा मॉडुलस फंक्शन हेतिबो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थिबो स्टेप फंक्शन थिबो by existence examine the existence of the following limit कहिथियो से केस रे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेशन करिया पड़े सब फंक्शन रो लिमिटिंग वैल्यू डा हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाहर करिया किछ नेसेसरी नाही किछ आवश्यक नाही किंतु जो फंक्शन ना मॉडुलस फंक्शन थिबो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थिबो स्टेप फंक्शन थिबो आ कहियो एग्जामिन द एक्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट बोली कहियो से केस रे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दीरा के बाहर करिया पड़ियो ए दीरा केस यदि समान होची बे लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्जिस्ट करबा अदरवाइज इट इज डज नॉट एक्जिस्ट हम यार एग्जांपल मु देबी जे लेफ्ट हैंड लिमिट केमति कैलकुलेशन कराउची और राइट हैंड लिमिट केमति कैलकुलेशन कराउची फॉर example limit x tends to 2 mod of x minus 2 by x minus 2 second problem the limit x tends to 3 by 2 2x minus 5 third problem the limit x tends to 1 x minus 1 रो mod plus x minus 2 रो mod बर्तन आईडी देथियो examine the existence of the following कहिथियो by evaluate the following limit यार आंसर बर्तन को देखो आंसर 1 limit x tends to 2 x minus 2 रो mod by x minus 2 देना clearly this function contains a modulus function so in modulus function we have to calculate the left hand limit and the right hand limit तो modulus function रहिला बा ब्रैकेट function रहिला माने तमे left hand limit आउ right hand limit बाहर करबो फर्स्ट टाइम बाहर करिया right hand limit माने x tends to 2 अछि right hand limit रे कोन हो x रो वैल्यू 2 टू टिके बड़ा हो the approximate value of fx when x is slightly greater than 2 तो हम राइट हैंड लिमिट रे कोन बोलछे लिमिट x tends to 2 प्लस नेबा 2 टू टिके बड़ा 2 प्लस x minus 2 mod by x minus 2 तो केमति कैलकुलेशन करछे put x is equal to नेबा 2 plus h नेबा कोन नेबा जे 2 plus h नेबा ए लेखिया एज
x tends to 2 plus that implies x tends to 0 जब x रे हमें 2 plus पकेबा 2 plus equal to 2 minus h 2 टा जब हमें लेफ्ट को आनिया 2 plus 2 minus 2 2 रु टिके अधिक थिबो -2 माने कोन हो एग्जैक्ट तो 0 होबनी ना tends to 0 0 point something then हम लिखुछे सेटा h tends to 0 so this is equal to limit h tends to 0 x जगह हमें 2 minus h पकेबा sorry 2 plus h minus 2 एड भी पकेबा 2 plus h minus 2 एटा ऊपर मोड अछि तळे मोड रहबनी +2 को -2 कैंसिल होला एड +2 -2 कैंसिल so this is equal to limit h tends to 0 एटा मोड h रहला मोड h by h means positive quantity h दा 0 point something आरो तो मोड h माने कोन हो h हो काहे 0 point something रो मोड अछि माने वैल्यू सबले पॉजिटिव हो so this is equal to limit h tends to 0 mod h रा h ला ये h कैंसिल ला so this is equal to 1 तो राइट हैंड लिमिट ता 1 आसिला लेफ्ट हैंड लिमिट कोन लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट रे लिमिट x tends to 2 minus x minus 2 रो mod by x minus 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कोन करिया पुट x is equal to 2 minus h लेबा as x tends to 2 minus h tends to 0 so this is equal to limit h tends to 0 h tends हमें डायरेक्ट भी लिखि पारिया डायरेक्ट एटा भी h tends to 0 लिखि x जगह हम कोन पकिया 2 minus h पकेबा एटा ला 2 minus h minus 2 रो mod by 2 minus h minus 2 तो +2 -2 कैंसिल होला so this is equal to limit h tends to 0 ये minus h रो mod by minus h एटा -2 2 कैंसिल होला तो minus h रो mod equal to mod h काय में जान से minus mod x equal to mod x minus mod h equal to mod h and mod h is equal to h होला so this is equal to limit h tends to 0 ये ना है mod h by minus h and this is also limit h tends to 0 mod h by minus h equal to -1 so the right hand limit is +1 left hand limit is -1 LHL is not equal to RHL so limit x tends to 2 mod x minus 2 by x minus 2 does not exist a limit ta kon hoche does not exist है बर्तमान सेकंड ता कोन देखो लिमिट x tends to 3 by 2 2x minus 5 हमें एड कोन करिया ना एड भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बाहर करिया देखो हमें केमजे बाहर करिया एडी सेकंड आंसर 2 ला पूछ देखो आंसर 2 एड भी हमें राइट हैंड लिमिट बाहर करिया तो राइट हैंड लिमिट हमें कोन लिखुतले हमर फार्मूला कोन थिला सेडी लिमिट x tends to a plus fx equal to limit h tends to 0 f को a plus h हमें एटा से को पुट x equal to a plus h नहीं रे ए फॉर्मूला तले हमें डायरेक्ट भी लिखि पारिया h tends to 0 f a plus h अच्छा देखो एडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अछि हम जान से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेशन कोन ब्रैकेट x का हम कहै ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोली कहै and the value of bracket x is always integer and that integer must be smaller than or equal to x टा जहां न चनियो ब्रैकेट x रो बल्ला गोटे इंटीजर आसीबो जो इंटीजर टा निज संख्या रो कोन हबो सान हबो किबा समान हबो या थारु केते भी बड़ हबो नाही अच्छा राइट हैंड लिमिट हम लेखिया लिमिट x tends to 3 by 2 plus bracket 2x minus 5 तो पुट x equal to 3 by 2 plus h नहीं हम कैलकुलेशन करिया नहीं 3 plus 3 by 2 plus h नहीं बाहर करिया कोई बात जहां मु डायरेक्ट लिखले कोन लिखु जामे लिमिट h tends to 0 h tends to 0 ए फंक्शन रे x आर कोन बको 3 by 2 plus h काई लिमिट x tends to a plus fx equal to
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h ए भी हम डायरेक्ट कर लही तांता एडी हम डायरेक्ट पकेले कोन हो लिमिट h टेंड्स टू 0 x जार हम कोन पकेबा ना a प्लस h एडा के तो 3/2 plus x minus 5 so this is equal to बुझी पाले तो एडा केमती पकाइला लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस एतिकी माने तमे नहीं थांतो पुट x इक्वल टू 3/2 प्लस h नहीं कर थांतो बस ए स्टेप का मु न नहीं डायरेक्ट लिख देली द लिमिट h टेंड्स टू 0 x आर हम पकेबा 3/2 प्लस h x आर a प्लस h पकेबा a माने 3/2 so this is equal to limit h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 8 बर्तन पूरा मल्टीप्लाई करियो 2 2 कैंसिल हो गया 2 to cancel लेडे के तरला 3 plus 2h minus 5 देखो केयरफुली देखो ए पिला हमर डाउट रही होची देखो कोन होची ना दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एटा केतला 3 ये कहते 2h minus 2 so this is equal to 2h minus 2 so this is equal to यार वैल्यू ला केता आसी एटा सब लोग इंटीजर आसी अच्छा h टेंड्स टू 0 माने तमे भाबो एडी h टेंड्स टू 0 अछि माने हम एडी h रा केते नेबा 0.001 नेबा मन मन गोटे भाबे गोटे संख्या दी भाबिया गोटे सानो संख्या नेबा से सानो संख्या रा हमें कोन नेबा 0.001 और यू कैन टेक 0.002 एम गोटे संख्या नहीं भाबिया पड़ियो अच्छा मन मु भाबिली 0.001 जत्ते सानो हो सेते पॉसिबल हो बेटर क्वालिटी आसीबो अच्छा यदि h ना 0.001 नेबा माने 2h केता हो 0.002 आसीला 0.002 minus 2 तो 0.002 minus 2 रे केता आसी 0. एडी आसीला तमरो 0.002 minus 2 तो -1 पॉइंट समथिंग आसियो ना नहीं 0.002 -2 कले हमर केता आसियो ना 2 टू टिके सान आसियो नहीं तो -1 पॉइंट समथिंग आसियो -1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन केते दिस इज इक्वल टू -2 -1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन होची -2 मला बुझलो ना जेतला h टेंड्स टू 0 2h minus 2 माने h रा मन कर मु नेली 0.001 नेली 2h केते आसला 0.002 0.002 minus 2 ले केते आसे -1.00998 नहीं तो -1 पॉइंट समथिंग हैला -1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन केते होची -2 अच्छा एला तो राइट हैंड लिमिट सो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं so left hand limit LHL limit x tends to 3/2 minus bracket 2x minus 5 तो हमें कौन करिया this is equal to limit h tends to 0 2 into it left hand limit रे x कोन पड़ियो f of x equal to f of a minus h x कोन पकया a minus h पकया so 3/2 minus h से कोन पकतले 3/2 plus h पकतले 3/2 minus h minus 5 so this is equal to limit h tends to 0 a to multiply करले एटा 3 minus 2h minus 5 so this is equal to limit h tends to 0 3 minus 5 minus 2 minus 2 है चला सो ये केता आसियो सो एडी बी h टेंड्स टू 0 जदी h टेंड्स टू 0 माने हमें जदी हमें h रा नेबा 0.001 नेबा तो 2h केता हो 0.002 minus 2 minus 0.002 बोले केतला -2.002 तो -2 पॉइंट समथिंग है ना -2 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन केता आसे हमरो -2 पॉइंट एरा केता आसे -2 ये -0.002 बोले -2.002 दैट इज -2 पॉइंट समथिंग
એટલે -2 point something रो ब्रैकेट फंक्शन केते ना -3 -2 point something रो ब्रैकेट फंक्शन केते होची -3 -2 लई लबनी -2 रा कोन होची -2 point something रो बडा होची एडु सानटा दरकार तनो लेफ्ट हैंड लिमिट आसला -3 आसला आ राइट हैंड लिमिट -2 आसला बुझलो ना एटा केमि देला राइट हैंड लिमिट एटा देखो 2 हेचला -2 माने 0 point something -2 के देला -1 point something हैला -1 point something रो ब्रैकेट फंक्शन -2 यू नो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटा सबले गुटे इंटीजर हबो इंटीजर ता निज संख्या रो बडा हबो या तारो सान हबो किबा समान हबो एटा -2 point something हैला एटा -1 point something है ब्रैकेट फंक्शन -2 हैला ना -2 point something हैला -2 point something रो ब्रैकेट फंक्शन -3 हैला तो LHL हैला -3 राइट हैंड लिमिट -2 तो LHL is not equal to RHL therefore the limit of the function does not exist तो मन रखना हम जान सेगा ना ब्रैकेट x दा is not continuous or bracket x ता हमर केवल exist होनी जतले x रो वैल्यू इंटीजर x जगह जो वैल्यू देथियो एडी पकले जदी गुटे इंटीजर पळे आसीबो एटा केबे भी राइट हैंड लिमिट ता लेफ्ट हैंड लिमिट संगे इक्वल हे परिबो नाही सो एडी हम जदी 3/2 पकेबो बोले एटा केते आसीला 2 into 3/2 2 2 कैंसिल ला 3 - 5 3 - 5 केते -2 आसीला सो इंटीजर आसीला इंटीजर आइले केबे भी एग्जिस्ट होनी जदी इंटीजर न होई फ्रैक्शनल पळे आसीयो बोले एग्जिस्ट हे थांता सो हमें फर्स्ट क्लास रे भी एमदी डिस्कशन हमें करथिले थर्ड क्वेश्चन देखिया द लिमिट x to 1 x - 1 रो मोड प्लस x - 2 रो मोड आंसर 3 देखो लिमिट x to 1 x - 1 रो मोड प्लस x - 2 रो मोड एड में मॉडुलस फंक्शन अछि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बाहर करिया राइट हैंड लिमिट बाहर करिया मॉडुलस फंक्शन थियो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थियो स्टेप फंक्शन थियो एक ऐसे तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट आउ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेशन करिया को पड़ियो देखो राइट हैंड लिमिट हम कोन करछे लिमिट x to 1 प्लस राइट हैंड लिमिट रे कोन 1 प्लस लिखिया तो x - 1 रो मोड प्लस x - 2 रो मोड तो 1 प्लस हम कोन लिखु छे राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट पको छे h टेंड्स टू 0 x टू पको 1 प्लस h सो दिस इज x पको 1 प्लस h 1 प्लस h केन देला तो मैं नहीं था तो पुट x इक्वल 1 प्लस h नहीं था तो as x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0 पुट नॉन नहीं मुटा लिख दो छी सो लिमिट h टेंड्स टू 0 x 1 प्लस h -1 प्लस 1 plus h minus 2 मोड तो दा प्लस 1 को -1 कैंसिल हैला दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एटा मोड h हैला ये केतला ना h -1 रो मोड हैला बर्तन मोड उठा पड़ियो h टेंड्स टू 0 अछि h माने कोन इट्स ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर तनो भीतरटा पॉजिटिव छ मोड h ता कोन हो h हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h हैला प्लस ये कौन होची एटा वेरी स्मॉल नंबर 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 गले कौन होची 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 गले माइनस 0 पॉइंट समथिंग आसला ना भीतरटा कौन होची नेगेटिव होला भीतरटा नेगेटिव होले मोड x ता कौन हबो माइनस x हबो इफ x लेस देन 0 जदी x ता पॉजिटिव हबो यू नो द मॉडुलस फंक्शन मोड x इज इक्वल टू प्लस x if x greater than 0 and mod x equal to minus x if x less than or equal to 0 तो मोटा उठिए वाला में केवल लिमिट का कर परिया नहीं मोटा उठाया पड़ियो जे तो यार बेला में नेगेटिव आसी 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 भीतरटा नेगेटिव भीतरटा नेगेटिव ले मोटा उठले माइनस ऑफ सेती रहइबो तो माइनस ऑफ h -1 अरे h -1 मोड पका देबे रेडी तो h -1 रो मोटा माइनस ऑफ h -1 हो because h -1 is negative so this is equal limit h tends to 0 and h minus h plus 1 है ना plus h minus h cancel है
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 होला, सो दिस इज इक्वल टू 1. तो राइट हैंड लिमिट 1 आसला. तो बता लेफ्ट हैंड लिमिट हम केमि कैलकुलेशन करा. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कोन होची LHS. LHS रे हम लिखिया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखिया x टेंड्स टू 1 माइनस बुझी होची x टेंड्स टू 1 माइनस. तो x minus 1 the mode plus x minus 2 the mode. तो x tends to 1 minus से बोला हम कौन पक्या h tends to 0. So this is equal to limit h tends to 0 और x are कौन पकोबो 1 minus h पकोबो. एडी कौन पकोदलो 1 plus h पकेलो. लेफ्ट लिमिट रे 1 minus h पकेला. 1 minus h minus 1 the mode plus 1 minus h minus 2 the mode. So plus 1 minus 1 cancel है. So limit h tends to 0. एड़ा क्या था minus h रो मोड है. ये plus 1 minus 2 1 minus 2 क्या था minus 1 minus h रो मोड. अच्छा एड़ा हम लिखी पारिया मोड x जा मोड minus x था. So limit h tends to 0 minus टा उठा दउची एड़ा ला मोड h पके देबी plus ये क्या था minus of 1 plus h minus 1 minus h means minus of 1 plus h minus of 1 plus h mode equal to 1 plus h mode है. 1 plus h mode एटा कोनटा 1 plus 0 point something भीतर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना. तो भीतर पॉजिटिव क्वांटिटी है मोड 1 plus h टा 1 plus h हो मोड h टा h हो. Are you understand? मोड h टा h हो 1 plus h mode ta 1 plus h because 1 plus h is positive. So h plus 1 plus h la एडी हमें h जदी 0 पकेबा h 0 plus 0 टाइम पकोबेडा 0 plus 1 केते होची एटा 1 आसीला. देखो एडी कोन होची राइट हैंड लिमिट ता 1 आसीला लेफ्ट हैंड लिमिट ता 1 आसीला. LHS limit is equal to right hand limit. Therefore limit of the function exists. तो यार लिमिट एक्जिस्ट हैला यार लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट हैला. मन रखो ब्रैकेट x दा केबे भी एक्जिस्ट होबोनी एट इंटीजर पॉइंट. इंटीजर पॉइंट रे केबे भी एक्जिस्ट होबो नाही. बाय डी कोन देछि x टेंड्स टू 3/2 देछि ना. जदी हमें 3/2 रा डायरेक्ट भीतर सब्स्टिट्यूट करिया हम लोग इंटीजर बोले पळे अछि ना. इंटीजर आइले केबे भी एक्जिस्ट होबोनी. जदी इंटीजर न होय जदी फ्रैक्शनल आई थांता बोले एक्जिस्ट हे जाता. एट जदी 3/2 न दे 2/3 थांता बोले एटा एक्जिस्ट हे जाता. जदी खाली 3 देइतले भी डज नॉट एक्जिस्ट हे जाता. तो मॉडुलस फंक्शन ना mod x minus 1 इन जनरली mod x minus 1 रो mod एट x minus 2 रो mod मॉडुलस फंक्शन ना सब बोले एक्जिस्ट हो. लेफ्ट हैंड लिमिट ता राइट हैंड लिमिट संगे इक्वल हो mod x minus 1 रो mod और mod of x minus 2 like that. So in such case you have to find the left hand limit and the right hand limit. जतो हमें कंटिन्यूटी डिस्कशन कराबो कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट हेबा निया दरकार. लिमिट एग्जिस्ट हेले रे फंक्शन ना कंटिन्यूटी बोले कहबा ना नहीं. तेनो हमें फर्स्ट ईयर पास्ट जहा लिमिट पढितले से सब जाक रिकॉल करिया निहाती दरकार. तेनो मन नथि बोली तमरो हमें फर्स्ट बोले लिमिट ऑफ द फंक्शन कोन देखिले तापर लेफ्ट हैंड लिमिट कोन देखिले राइट हैंड लिमिट कोन तार प्रॉब्लम कोन भी डिस्कशन हमें करले. और मेन कथा ला हाउ टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x. और फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू माने कोन आ लिमिट केमि हमें कैलकुलेशन करछे तीनटा मेथड देगिरी सेटा मध्ये हमें डिस्कशन करले. एथिरे नेक्स्ट या पर हम देखिबा जे लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूला कोन अछि. हमरो फर्स्ट ईयर भी पढ़थिले फार्मूला कोन कोन अछि लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूला. So what are the limit of the standard formula? हमें स्टैंडर्ड फार्मूला और लिमिट रो फर्स्ट भी डिस्कशन करथिले हमें तार कोन कोन फार्मूला अछि देखो पहिले. फर्स्ट फार्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x equal 1. हमें या सब जगह प्रूव करथिले. So limit x tends to 0 sin x by x equal 1. एडा को एडी कोन अछि sin एंगल x अछि तळे x अछि एंगल ला जति थियो तळे सेति थियो सेति टेंड्स टू 0 थियो फार्मूला अछि 1. हमें भी एडा भी आर नोट रखली जे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0
sin alpha x by x केते अल्फा काई केम देला ना जदी अल्फा x दियो बोले तुम कोन करे अल्फा मल्टीप्लाई करियो एटा अल्फा मल्टीप्लाई करियो ना नहीं बोले अल्फा का कांस्टेंट आगु बाहर पड़ियो सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin alpha x by x is equal to alpha sin the limit x tends to 0 cos x equal 1 एटा कोन मिले तो limit x tends to 0 sin x by x होची 1 like that limit x tends to 0 sin alpha x by x होची alpha एबे लिमिट x tends to 0 sin 2x by x केते बोली पचारियो जेतो ये एंगल ना sin 2x होचे एंगल ना तो केते x अछि तो डिनोमिनेटर में जो हम 2x करिया करियो तो एटी जे तो 2x अछि एटी 2 मल्टीप्लाई करियो एटी 2 मल्टीप्लाई करियो ए टूटा कोन कांस्टेंट आगु नै जियो सो दिस इज इक्वल टू 2 into limit x tends to 0 sin 2x by 2x as x tends to 0 2x tends to 0 तो एटा 1 आइला तो लिमिट x tends to 0 sin 2x by x बोले 2 हो लिमिट x tends to 0 sin 3x by x बोले 3 हो सिमिलरली लिमिट x tends to 0 cos x is equal to 1 लिमिट x tends to 0 tan x by x is equal to 1 tan x by x tan एंगल ना जति तो थोड़े सटी थिबो दिस इज इक्वल टू 1 ना नहीं और भी जान से लिमिट x tends to 0 एटा भी हमें एमजे लिखि परिया नोट भी टाकितली जे लिमिट x tends to 0 tan alpha x by x is equal to alpha तो फर्स्ट रे खाता देखियो बोले लिमिट रो ए सब जाका प्रॉब्लम सेतिर थिबो लिमिट x tends to 0 tan alpha x by x is equal to alpha since the limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x होची 1 plus जति थी और पावर 1 by सेति थिले ही होची बा एटा रो पाइची लिमिट x tends to 0 1 plus alpha x to the power beta by x 1 plus alpha x to the power beta by x is equal to केते e to the power alpha into beta मन रखियो 1 plus 2x to the power 1 by x so this is e to the power 2 formula 1 plus x to the power 1 by x होची e it 1 plus alpha x to the power beta by x equal to e to the alpha beta so the limit x tends to 0 log 1 plus x by x होची 1 log 1 plus जति जे तळे सेति थिबो बा r नोट टा बिटा कितली लिमिट x tends to 0 log 1 plus alpha x by x 1 plus alpha x by x is equal to केते हो alpha so the limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x a रा कोन ना कांस्टेंट a must be greater than 0 but not equal to 1 so this is equal to log a by c or ln a ln a a पर x minus 1 by x equal to log a by c or ln a limit x tends to 0 e to x minus 1 by x इधर भी एड़ा e हो बोले कौन log e by c तो log e by c और ln e is equal to 1 ए सब जगह हम फर्स्ट ईयर प्रूव करथिले यार प्रॉब्लम गुडाए प्रॉब्लम हमें मध्य डिस्कशन करथिले और मेन फार्मूला अछि पावर फार्मूला देखो पावर फार्मूला कोन द लिमिट x tends to a x to the power n minus a power n by x minus a फैक्टराइजेशन करियो तमे फैक्टराइजेशन करी हम बाहर करथिले x to the power n minus a power n by x minus a दी रागर पावर ता समान थियो तले कोन अछि x minus a फार्मूला कोन होछि ना n into a power n minus 1 this is a power formula and it is very important formula आप हमको से पावर फार्मूला सो एतिकी स्टैंडर्ड फार्मूला सहित आकु मध्ये आमे लॉजिकली जे लिमिट x tends to 0 sin alpha x by x थियो लिमिट x tends to 0 tan alpha x by x थिबो और मध्ये आमे कहितले डिस्कशन करथिले जे लिमिट x tends to 0 sin alpha x by sin beta x केते alpha by beta और डिस्कशन करथिले लिमिट x tends to 0 sin alpha x by tan beta x so this is equal to alpha by beta the limit x tends to 0 tan alpha x by tan beta x is equal to alpha by beta याकू स्टैंडर्ड फॉर्म रे कन्वर्ट करी करले हबो किबा तुमे डायरेक्ट फार्मूला मध्ये यूज करि परिबो ए सब जगह फास्ट डिस्कशन करथिले दिस वन इज द पावर फार्मूला ओके सो तेनु आमे जतो लिमिट ए सब जगह लिमिट हम कंटिन्यूटी जतो हम डिस्कशन करिया हम सेकंड ईयर से कंटिन्यू टू स्टार्ट हो कंटिन्यूटी गले जिया बोले हमको लिमिट ऑफ द फंक्शन नियाति दरकार
कहीं कंटिन्यूटी केते हम लिमिट फंक्शन एक्जिस्ट हेबा दरकार एक्जिस्ट माने गोटे फंक्शन रो लिमिटिंग वैल्यू बाहर दियार अछि वैल्यू एक्जिस्ट हेबार अछि तो लिमिट एक्जिस्ट करिया बोले हम एमिति सब जाक वे बाहर करिया को पड़िबो आउरी हमर ट्रिग्नोमेट्री रो लिमिट रो बहुत फार्मूला दरकार ट्रिग्नोमेट्री रो फार्मूला लिमिट 1 - cos x केते 1 - cos x रो फार्मूला कोन 2 sin स्क्वायर x by 2 1 plus cos x रो 2 cos square x by 2 से ट्रिग्नोमेट्री रो फार्मूला निहात दरकार काई कैलकुलेशन होची वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर तेणु कैलकुलेशन को तमे केबेले अवहेला कल हबनी एडा इजी चैप्टर आ इंपोर्टेंट चैप्टर टा आपको भला प्रैक्टिस करिया पड़ो दिस इज द मोस्ट हेल्पफुल इन रियल लाइफ ए चैप्टर टा हम फर्दर स्टडी पाई एडा बहुत एप्लीकेबल हबो पाठडा ए होचे अप्लाइड मैथमेटिक्स टा तेणु अप्लाइड माने एडा सब बेले दरकार हबो तेणु कंटिन्यूटी आउ डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी डिफरेंस तापर हमें पढ़ा डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन ए सब जगह एप्लीकेबल पाठ या भल से हम प्रैक्टिस करिया पड़ियो सेकंड क्लास रे हम देखिया कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन केते मिनट